Good morning friend, my name is Avinash Ghurpade. In my last video we have studied about active voice into passive voice of simple past tense. Today I am come up with a new topic called simple future tense. So earlier I am going to teach you all the simple tenses. So today's topic is simple future tense, and that we are going to change active voice into passive voice. I have already mentioned both the formulas of active voice and passive voice on the whiteboard. You can see it. And also I have written an example here. They will watch a movie. Let's see. What is simple future tense? When the action is going to take place in future, it's called simple future tense. Let me take the example. I watch a movie. It's a habit. I watch a movie. So when I utter this sentence, it means that I have a hobby to watch a movie. So this is in habitual sentence. This is in simple present tense. How? Subject plus first form of the verb plus object. It is an object because I told you how to identify an object. But in case, there are so many movies are in pipeline due to lockdown. Very soon, probably they will be, released on theater. So I have a planning to watch Dhoom 4, on theater. So my sentence will be, I have a planning and I am going to watch. My sentence will be, they will watch a movie. वो मूवी देखेंगे, या फिर आई विल वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखूंगा. एक्शन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एट, एक्शन विल बी टेकन प्लेस, तो वो आगे जाके होने वाली है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में वो सभी सेंटेंसेस आएंगे जो हम आगे जाके करने वाले हैं. तो क्या डिफरेंस है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना ही है, यहाँ शॉल या विल जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं विच इंडिकेट्स फ्यूचर रेफरेंस, जो फ्यूचर का रेफरेंस बताते हैं. द एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, शॉल और विल. और ये शॉल और विल है क्या सर? ऑब्वियसली हम सब लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. और जाके रूट में जाके अगर देखें तो ये शॉल और विल मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल्स है. शॉल और विल ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, वुड, उसी तरह. तो उस रूल में इसको एक्टिव टू पैसिव बनाना आज हम सीखने वाले हैं. और एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने यहां लिखा कि दे विल वॉच अ मूवी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दे विल वॉच अ मूवी. चलो, इसका मतलब यह है कि दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर विल. सो सिंपल. सो यू कैन टेक इट एज अ विल और शॉल, मोस्ट प्रोबेबली विल. अब बहुत बार कॉमन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिफोर गोइंग टू लर्न एक्टिव इनटू पैसिव आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. बहुत बार ऐसे भी बोला जाता है कि सर शॉल कब ले और विल कब ले. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. एक तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिया जाता है, या फिर कभी कभी ये ऑफर के लिए लिया जाता है, कभी कभी ये सजेशन के भी ये ले सकते हैं हम. लेकिन मोस्ट ऑफन बहुत सारे ग्रामेटिकल बुक्स में दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ रूल्स बनानी है, आप आई या वी के लिए शॉल यूज कर सकते हो, बट देयर इज नो कंपल्शन. But when you want to suggest something, when you want to offer something, suggest something, at that time you can use shall with I and we. This is a basic rule. Otherwise, alternately you can take shall or will. There is no perfect rule like this. But most often we take will. We take will as a simple future tense. So let us concentrate over the examples that I have given to you. They will watch a movie. Let me explain, sir. First of all, whether this is a sentence belong to active voice or passive voice. Let's see. Subject will is a helping verb over here. We called it modals. तो helping verb लिख लेता हूँ मैं यहाँ. Watch जो है वो verb का पहला फॉर्म है, और उसके बाद है movie. तो watch को हम क्वेश्चन पूछेंगे, what watch? So you or whom watch? तो what watch का आंसर है a movie. It means that it's an object. तो क्या यही स्ट्रक्चर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट, शॉल और विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब यह है कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जब कभी कोई सेंटेंस किसी स्ट्रक्चर में आता है टेंस के, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता है. दिस इज एन एक्टिव वॉइस. लेट मी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे करें? वो इतना ही ईजी है जितना ये ईजी था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इतना ही ईजी है. उसका मैंने ऑलरेडी बना के दिया है. आप अभी तक एक बात तो सीख गए होंगे कि कैसे बनाना है.
एक थोड़ी सी उसमें एक बारीकी है जो आपको अभी बताने वाला हूँ, शायद आप भूल जाते हो उसको बनाते समय। हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस में, अ मूवी, ए इज कैपिटल, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अ मूवी। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद ये शॉल, यहाँ विल लिया गया तो मैं विल को ले लूंगा, अ मूवी विल। उसके बाद आपने बोला था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, इसमें भी दिया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, नहीं इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद आपने बताया कि सर यहाँ बी लेना है, मतलब विल के बाद बी लेना है क्योंकि आप पैसिव वॉइस कर रहे हैं। क्यों बी लेना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी क्यों लेना है? आप यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं ले रहे विल के बाद? ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर ये मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में होता है मॉडल्स के बाद। तो लेकिन हमें पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट टेक आफ्टर मॉडल्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, there is no rule. So in order to maintain sense we have to take here be, and later on I can take third form of the verb, it's called watch. Okay, so a movie will be watched. Watch what? Watched by them. दे का बन गया है देम। आपको ऑलरेडी मैंने ये चार्ट बना के दिया है कि दे प्रोनाउंस विल बी चेंज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एज अ देम। देम is an objective form, they is a subjective form of they. Okay, so a movie will be watched by them. Sentence is quite simple and easy to make. तो क्या सर आपने इस एक्टिव का पैसिव बना दिया है? आपने हमें एक स्ट्रक्चर बताया था उस तरह से हमने चेंज भी कर लिया है। बात ध्यान में रखने वाली सिर्फ यहाँ ये है कि यहाँ बी लेना पड़ता है। लेना क्यों पड़ता है बी? क्योंकि ये मॉडल्स यूज किए हमने, मॉडल्स के सामने वर्ब का कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते हम सीधा, इसलिए वहां मैंने बी यूज किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव वॉइस में आता है, तो इसमें भी आया। बाकी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इतना ईजी सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब शॉल लेना है कि विल लेना है ये प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी दिया रहेगा, वो शॉल रहेगा नहीं तो विल रहेगा। इस तरह से बहुत ही सिंपल और ईजी मैनर में वी कैन चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। That is what I just want to try to explain. या हम उसके और एक दो सेंटेंसेस अभी देखने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो सेंटेंसेस और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम पढ़ रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे करें। एक सेंटेंस और लिखा हुआ है यहाँ, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। Generally we would like to attend the party, but just because of a lockdown we are not going to attend the party. I shall not attend the party. ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, मुझे पता चला क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मैंने शॉल लिया है, यहाँ शॉल ले लो या फिर विल ले लो, प्लस नॉट दिया है, निगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट है, और वर्ब हम निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ आप टाइटल भी डाल सकते हैं कि निगेटिव कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। तो शॉल है, उसके बाद नॉट है, वर्ब का पहला फॉर्म है, अटेंड है ये वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद द पार्टी ऑब्जेक्ट है, व्हाट अटेंड द पार्टी, मतलब इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शॉल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो हम बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस बनाना सबसे ईजी है, सबसे ईजी तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और वो भी निगेटिव सेंटेंस का। कैसे? द पार्टी इज एन ऑब्जेक्ट, तो मैं द पार्टी यहाँ लिख रहा हूँ। द पार्टी हेल्पिंग वर्ब मैं शॉल ले लूँगा क्योंकि यहाँ शॉल है, यू कैन चेंज इट विल आल्सो। द पार्टी शॉल sorry especially with I and we, if there is a I and we can take shall, but the party is not I and we, so we have to change it here, we have to take it here will. The party will के बाद नॉट आया है तो हम नॉट ले लेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, और नॉट हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, लगाते हैं, मॉडल्स को लगाते हैं। तो विल नॉट, तो अभी हमें बी लेना है, या मतलब एक बात समझ में आ चुकी होंगी, बी के बाद लेना है अटेंडेड, ये थर्ड फॉर्म में ले लेंगे अटेंडेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने बताया क्या नॉट कहाँ लिया है? तो नॉट लिया है यहाँ, विल के बाद नॉट और बी के पहले नॉट, तो नॉट यहाँ आएगा। नॉट का प्लेस आपको एकदम डिटरमिन रखना है। द पार्टी विल नॉट बी अटेंडेड बाय हुम, यहाँ आई करके प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा वो मी। द पार्टी विल नॉट बी अटेंडेड बाय मी। कितना ईजी है इसका नेगेटिव का भी पैसिव वॉइस करना। अब मुझे कोई भी सेंटेंस बता दो
एक सेंटेंस है कि लॉकडाउन विल, एक लॉकडाउन के लिए अगर हम एक सेंटेंस अगर बनाएं तो ये मैं ट्राई करता हूँ कि क्या इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। पीएम विल ओपन लॉकडाउन। तो हमारे जो पीएम है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, क्या विल ओपन लॉकडाउन, पीएम विल ओपन लॉकडाउन, वो लॉकडाउन को ओपन करेंगे, या फिर हमें ये बोलना है कि वो लॉकडाउन ओपन नहीं करेंगे। निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं तो हम विल प्लस नॉट बोल सकते हैं, विल नॉट, लेकिन जनरली विल नॉट नहीं लिखते या बोलते नहीं है, हम उसको बोलेंगे ओंट। मतलब आज हम एक चीज़ और सीख रहे हैं यहाँ कि अगर विल नॉट लेना है आपको मित्रों, विल प्लस नॉट, तो उसको बोलते हैं ओंट। अगर वो शॉल नॉट रहा वर्ड, शॉल प्लस नॉट, तो उसको बोलेंगे हम शांट। ये भूलना नहीं है, विल नॉट ओंट, शॉल नॉट शांट। तो यहाँ विल नॉट लेना था मुझे, तो आई टुक ओंट। नाउ डोंट बी सो कंफ्यूज कि व्हाट इज ओंट। सो पीएम ओंट ओपन लॉकडाउन, वो ओपन ही नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस। हाउ वी कैन चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, दैट टू ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस। लॉकडाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? ओपन को क्वेश्चन पूछो, व्हाट ओपन, व्हाट ओपन, तो लॉकडाउन, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लेंगे हम सब्जेक्ट की जगह लॉकडाउन। ओंट है तो ओंट की जगह हम ओंट ही ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ओंट। आपको पता है उसके बाद क्या लेना है, उसके लिए बाद लेना है बी, क्योंकि हम ओपन का थर्ड फॉर्म विदाउट बी नहीं ले सकते। विल बी, सॉरी, ओंट बी ओपन बाय पीएम। अभी पीएम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीएम चेंज होता है, सीएम बनता है क्या सर? नहीं, सीएम नहीं बनता, पीएम का पीएम ही रहेगा, तो ये बन गया उसका पीएम। तो लॉकडाउन ओंट ओपन बाय पीएम। This is very simple. These two negative sentence, I have explained in the class. Now I am going to explain about interrogative sentence. I am going to explain about interrogative sentence in simple future tense. Okay, so let us see about interrogative sentence. Coming to the next topic of simple future tense. इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आपको रहा, इंटरोगेशन, अगर इंट्रोगेशन रहा, इसी को क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को प्रश्न बोलते हैं। ये प्रश्न भी कैसा है? ये प्रश्न एस्नो टाइप है, इसका आंसर एक तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। सर एस्नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर लो, हेल्पिंग वर्ब से कर लो किसी भी शुरुआत के सेंटेंस की, ये हेल्पिंग वर्ब है तो वो बन जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। तो उसका आंसर यस या नो में आता है। शाल आई वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखूंगा, यस और नो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, विल ही वॉच अ मूवी, वो मूवी देखेगा, यस और नो इसका आंसर रहेगा। आई के कारण मैंने शाल लिया है, ही के कारण मैंने यहाँ विल लिया है। तो अगर इस तरह के इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इसका बनाना भी इतना ही ईजी है जितना इससे पहले हमने देखा है। चलो इसका बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको बनाए कैसे सर, ये तो शॉल अलग दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 1 मिनट के लिए शॉल को यहाँ डाल दीजिए अपनी जगह। मतलब इसका बन जाएगा आई शॉल वॉच अ मूवी। क्या आपने इसका पैसिवाइज नहीं किया है? यस, एब्सोल्युटली आपने इसका पैसिवाइज किया है। तो इसको यहाँ डाल के पैसिवाइज बना दीजिए। अ मूवी ऑब्जेक्ट है तो मैं पैसिवाइज बनाने जा रहा हूँ, तो अ मूवी के लिए लूँगा मैं अ मूवी, और शॉल आपने यहाँ डाला है तो ऑलरेडी मैं शॉल ले लूँगा। लेकिन शॉल यहाँ आएगा नहीं सर, क्योंकि मूवी जो है उसके सामने हम विल लेते हैं, आई और वी के सामने हम शॉल लेते हैं। तो मूवी विल, विल ले लिया मैंने, द मूवी विल। आपको पता है कि बी लेना है करके बी लिया मैंने, फिर उसके बाद वॉच, वॉच इसलिए लिया क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अ मूवी विल बी वॉच्ड, वॉच्ड बाय, आई के लिए मैंने यहाँ ले लिया मी। चलो बना दिया। मतलब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बना दिया था पहले असर्टिव, देखो शॉल को अपनी जगह डाल के मैंने बना दिया तो इसको असर्टिव, फिर असर्टिव का मैंने पैसिवाइज बना दिया, अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी। कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन क्वेश्चन तो इंट्रोगेशन में था ना सर, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव था, तो आपने असर्टिव का बनाया है यहाँ, तो हमें भी ये आंसर उसका पैसिवाइज का इंट्रोगेटिव में चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे? बनाना उससे भी ईजी है। हेल्पिंग वर्ब को एक बार फिर सब्जेक्ट के सामने डाल दीजिए इस तरह से,
विल मतलब इसमें स्टेप्स देखो कौन से स्टेप फॉलो किए। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा मित्रों, पहला स्टेप था उसको असर्टिव बनाना। दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 2 उसका पैसिव वॉइस बनाना, जो मैंने बना दिया पैसिव वॉइस। और स्टेप 3 क्या है इसका, तीसरा स्टेप क्या है इसका, सॉरी इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। स्टेप 3 क्या है इसका इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में मैं पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ इसको। इसी को कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस, सर ये जो विल आपके सब्जेक्ट के सामने डाला था उसको आपको सब्जेक्ट के सामने लेना है। इतना इजी होता है बनाना। विल पहले ले रहा हूँ इसलिए W कैपिटल, विल मूवी बी, यहाँ बी ले लेंगे, विल यहाँ लिया मैंने, बी यहाँ लिया। पोजीशन भी देख लो आप वर्ड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल अ मूवी बी वॉच्ड बाय मी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है अभी। इतना इजी है ये। बनाते समय मैंने 3 स्टेप में बना दिया, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में इंडेड, 3 स्टेप है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव को मैंने असर्टिव कर दिया था। असर्टिव कैसे किया था, शाल को अंदर डाल के। फिर उसका पैसिव वॉइस मैंने किया जो हम हमेशा ही करते हैं, और पैसिव वॉइस बनने के बाद हमें समझ में आया कि ये तो इंट्रोगेटिव था। फिर मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सामने डाल दिया इस तरह से, और फिर बन गया उसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस भी इस तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको और एक एग्जांपल देखना है तो मैं और नीचे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, जैसे एक एग्जांपल था, विल पीएम ओपन द लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन शुरू है, क्या इसको ओपन करेंगे पीएम, ये क्वेश्चन मार्क्स है। अब इसको भी हम 3 स्टेप से बना सकते हैं। अर्लियर जो बिगिनर्स है उनको स्टेप्स वाइज जाना पड़ेगा, जो बिगिनर्स ने उनको फट से समझ में आता है। तो 9th 10th 12th के बच्चे जो है, जो बिगिनर्स है वो ये देख के भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 सर आपने बताया था, स्टेप पहला इसको असर्टिव बना दो। असर्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी सेंटेंस इज इन अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाल दो, तो उसी को फॉर्म है। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। क्या करना है, विल को हमको सब्जेक्ट से पहले डालना है। मतलब ये क्या बनेगा, पीएम विल ओपन द लॉकडाउन। अभी ये क्वेश्चन है क्या बेटा, नहीं है, ये प्लेन असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने उसको बनाया है। चलो अभी इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना आ जाता है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टेप्स 2 में। तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, द लॉकडाउन, ये ऑब्जेक्ट है, ओपन व्हाट, द लॉकडाउन, ओपन व्हाट, द लॉकडाउन। द लॉकडाउन ले लिया मैंने, द लॉकडाउन। क्या आपको ये स्क्रीन में नीचे वाले एग्जाम्पल दिख रहे हैं? अगर आपको ये नीचे वाले एग्जाम्पल स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं तो मैं स्टेप्स 2 ऊपर लिखने जा रहा हूँ। यहाँ तक दिख रहे, स्टेप 1 दिख रहे, स्टेप 1 दिख रहे आपको? ओके, आपको स्टेप 1 दिख रहे हैं, मतलब स्टेप 1 में मैंने इसको असर्टिव बना दिया। मित्रों मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, यहाँ लिखने वाला हूँ। स्टेप 1 मैंने यहाँ लिखा है, स्टेप्स 2 में यहाँ लिखने वाला हूँ। उसमें मैं इसी का असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस करने जा रहा हूँ। तो लॉकडाउन ऑब्जेक्ट है तो मैं पहले द लॉकडाउन लेता हूँ, द लॉकडाउन। लॉकडाउन का द इसलिए लगा है क्योंकि बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट लॉकडाउन, द लॉकडाउन। उसके बाद सेंटेंस में विल था एज अ मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब करके, तो मैंने विल ले लिया। विल के बाद बी लेना पड़ता है, आपको पता है क्योंकि मैं ओपन लिखने जा रहा हूँ, या वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हो तो आप बी लेना ही पड़ता है आपको। द लॉकडाउन विल बी ओपन, कौन ओपन करना है, बाय पीएम, ठीक है। तो वो पीएम ओपन करेंगे लॉकडाउन। लेकिन हमारा वही क्वेश्चन था जो स्टेप 3 में सॉल्व होने वाला है। स्टेप 3 हमें क्या बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन था, आपने असर्टिव का पैसिव वॉइस बनाया है, तो क्या करें? तो बनाना बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सामने डालो। मैंने बहुत बार बताया उसका इंट्रोगेटिव करना, तब जाके इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव का कैसे होगा फिर, विल बड़े से लिख लो, विल द लॉकडाउन बी ओपन्ड बाय पीएम। लेकिन अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, सो आई नीड टू पुट हियर अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, इंट्रोगेशन। तो ये इस तरह से, तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। इसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने फॉलो किए। ये दिखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये पूरा आ जाएगा। I'll also attach few sentences to your video in a link box. Actually, I am going to attach a link regarding this video. So you can also click over that and solve few exercises regarding simple future tense.
So this is I have done with simple present tense, simple past tense and simple future tense. You must have gone through my video so far. If not, please go and watch my video in detail and try to write down your own notes. This is going to be the easiest way to learn voice in lockdown. Another thing is that please subscribe my channel, and also you can share my videos to others. If you have any comment regarding my topics, you can simply give comment in my comment box. Thank you so much.